Hi, and welcome to our YouTube channel. I am Amit Dutt, founder and CEO of Finasource Innovations. So there's a good news that National Statistics Office ने एक डेटा रिलीज किया है that Indian economy will grow at 7.3% against in the fiscal year 2023-24. Okay, so in the dynamic and competitive business landscape of India, हमारे entrepreneurs को to fuel their business they need financial assistance. So in this case, business loan play a vital role for expansion of a business, for working capital, or to address any unforeseen situation in a business. So let us understand what is business loan all about. So the type of business loan in India में first thing which we will discuss here is about working capital loan. So working capital क्या होता है? Working capital is your current assets minus current liabilities. तो करंट एसेट क्या होता है कि आपके एक साल में होने वाले जितने भी आपके पास कैश हैं, लाइक योर इन्वेंट्री, योर लिक्विड कैश, आपके बैंक डिपॉजिट्स एटसेट्रा, जो कि आप एक साल के अंदर कैपिटलाइज करके एक साल के अंदर आपके पास जो फंड हो सकता है, दैट इज योर करंट एसेट. And similarly your current liabilities. So current asset minus current liabilities is working capital. So many a time the businesses need financial assistance to meet their working capital expenses. So basically this is an operational expenses. So the financial institutions do provide loans for working capital management. Now there are term loans. The term loans, what it means that there will be a term. So these are basically long-term loans, basically for business expansion, for asset acquisition, or any strategic expansion which you are planning to do. You want to enter into a new market, etc. Basically, it is all related to your infrastructure development. So in such kind of loans, there will be fixed repayment schedules, and the loans are often secured by collaterals. There are machinery loans. So machinery loans क्या होता है कि आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या आपकी कोई और बिजनेस है जिसके अंदर आपको मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरीके के लोन्स बिजनेस को मीट करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए यू कैन टेक लोन्स जिसके अगेंस्ट में आप मशीनरी खरीदें. ना मशीनरी जो आप खरीदते हैं यही मैक्सिमम टाइम बैंक जो है इसको कोलेट्रल के तौर पर रखती है, एंड कोलेट्रल पे तौर पर रख के आपको मशीनरी के लिए लोन दे देती है, सो दैट यू कैन यूटिलाइज योर मशीनरी एंड ग्रो योर बिजनेस, एंड बैंक विल सिक्योर द लोन बाय सिक्योरिंग द मशीनरी. नो एक्सपांशन लोन, ये बेसिकली बिजनेस एक्सपांशन के लिए लोन होता है. If you want to enter into a new market, you want to introduce a new product line, if you have a strategic expansion plan, so आपको एक robust business plan बनाने की ज़रूरत है. So do prepare a robust business plan, approach a good lender, explain your project, and you can get a business expansion loan. Now coming to small business loans. भाई ये तो बड़े बड़े बिजनेसेस की तुमने बात कर दी, बट स्मॉल बिजनेसेस को भी लोन की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि उनको तो बहुत ज़्यादा पड़ सकती है. सो देर आर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एज वेल अदर देन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. देर आर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स विच इज़ वेल अवेलेबल टू सपोर्ट सच काइंड ऑफ लोन्स टू स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस. अब हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है for a business loan. So most important criteria is your credit score. So what is credit score? Credit score में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बैंक चेक करेगी, एट द सेम टाइम योर सिबिल स्कोर्स वगैरह सब चेक करेगी, आपकी क्रेडिट वर्दिनेस चेक करेगी, आपकी सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैंक वेरीफाई करेगी. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच योर बैंक विल डू. देन बैंक विल ऑल्सो सी योर बिजनेस विंटेज, मीन्स आपका बिजनेस कितना पुराना है, कितने साल हो गए हैं, एंड व्हाट इज योर ग्रोथ पाथ ऑफ योर बिजनेस, हैव यू एक्सपांडेड, व्हाट इज योर बिजनेस प्लान, how are you going to grow further. All this thing bank is going to check, but basically वो आपके पास्ट को ज़्यादा चेक करेगी कि आपने पीछे क्या किया हुआ है. So if that is good, your chances of getting loan
is higher and also probably at a lower rate of interest comparatively. Financial stability bank is going to check. So बैंक आपकी जो बुक्स हैं, लाइक योर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, आपकी बैलेंस शीट्स है, आपके इनकम टैक्स स्टेटमेंट्स है, ये सारी चीज़ चेक करने के बाद में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इवेल्युएट करती है एंड देन बैंक आपको लोन का प्रोसेस करती है एंड ऑफन कोलेटरल्स लेती है बैंक, यू नो। तो सिक्योर्ड लोन अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको एक फ़ायदा होता है कि आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं because you are giving a collateral to the bank. Secondly, in cases of secured loans, your rate of interest are expected to be lower as compared to unsecured loan, which is very obvious. But unsecured loans भी आप ले सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट जो स्कीम्स होती हैं जो कि आपको काफ़ी रिलेटिवली अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं जहाँ पे आप अपने बिजनेस के नीड रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोन ले सकते हैं। नाउ बिजनेस प्लान क्या होता है? आपको एक वेल डॉक्यूमेंट बिजनेस प्लान बनाना है जिसमें कि आप के जो लोन के अप्रूवल जो है, आपकी बिजनेस प्लान जितनी अच्छी होगी उतना ही आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आप लोन को ले सकें। आपकी बिजनेस प्लान, आपकी लोन रिपेमेंट की स्ट्रैटेजी, आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी, आपकी फ्यूचर रेवेन्यू प्रोजेक्शंस, सब कुछ प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है? तो एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी। डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या होगा? आपको अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठी करनी होगी, आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी आपको तैयार रखने होंगे, आपके लाइक आपके ऑडिटेड बैलेंस शीट्स हैं, आपके इनकम टैक्स स्टेटमेंट्स हैं, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, सारी चीज़ें आप रेडी करिए। देन आप एक राइट लेंडर को चूज़ कीजिए। लेंडर को चूज़ करने के बाद में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेंडर के पास में सबमिट कीजिए एंड उनसे लोन के लिए अप्लाई कीजिए। लोन के एप्लीकेशन दोनों तरीके के हो सकते हैं। यू मे अप्लाई ऑनलाइन और यू मे अप्लाई ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब तो आपको सारा डॉक्यूमेंट डिजिटली सबमिट करना हो जाता है, लेकिन ऑफलाइन के केस में आपको फिजिकली ब्रांच में विजिट करके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। लोन के टेन्योर जो हैं वो आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट एंड आपकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से आप और आपके लेंडर मिलकर फिक्स कर सकते हैं। अप्रूवल एंड डिसबर्समेंट, अगर आपके सारी चीज़ें जो हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स इफ दे आर फाउंड गुड, तो बैंक आपके लोन को अप्रूव करके आपके लोन को डिसबर्स कर देती है। इसका टाइमलाइन में ये होता है कि आपके लोन का आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आपकी जो एप्लीकेशन है, वो जितना सिंपल होगा वो उतनी आसानी से और उतनी फास्ट आपको लोन मिल जाएगी, और जितना ही कॉम्प्लेक्स आपका केस होगा उतना ही ज़्यादा समय लगता है आपके केस को अप्रूवल एंड डिसबर्समेंट में। अब आते हैं इंटरेस्ट एंड फीस के ऊपर। सो इसमें आपके पास दोनों तरीके के रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट रेट जो है फिक्स्ड रहेगा, फ्लोटिंग में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट कंडीशंस के हिसाब से फ्लक्चुएट हो सकता है। दूसरी चीज़ होती है प्रोसेसिंग फ़ी। प्रोसेसिंग फ़ी आपका ऑफन आपको जो है लेंडर में चार्ज सम प्रोसेसिंग फ़ी टू प्रोसेस योर लोन। सो आप अपने लेंडर के पास में इफ़ यू गेट द चॉइस, आप उनके साथ नेगोशिएट करके अपने प्रोसेसिंग फ़ी को देख सकते हैं कि आपको फॉर सम नेगोशिएशन इन द फ़ी अमाउंट। देन प्रीपेमेंट चार्जेस में जो है आपके कुछ लेंडर्स आपको प्रीपेमेंट के अगेंस्ट में थोड़ा बहुत चार्जेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको चीज़ देखनी ये भी होती है कि साथ में जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कीजिए कि इज़ देयर एनी हिडन चार्ज मे बी लाइक इन टर्म्स ऑफ योर इंश्योरेंस, मे बी इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस और एनी काइंड ऑफ लीगल फी एट्सेट्रा। ये अप एंड अबव आपके लोन अमाउंट है क्या, ये सब चीज़ आपको चेक कर लेनी चाहिए बिफोर टेकिंग द लोन। Now we'll come to the various government schemes and initiatives. So first is like मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही अच्छी एक स्कीम लॉन्च की है। इसमें बेसिकली द आइडिया इज टू सपोर्ट द माइक्रो एंटरप्राइजेस
एंड इसमें 3 तरीके के स्कीम्स है। एक है शिशु योजना, शिशु में आपको 50,000 रुपये तक आप लोन ले सकते हैं। दूसरा है किशोर योजना जिसमें कि आपको 50,000 से 5 लाख तक, एंड देन द लास्ट वन इज तरुण जिसके अंदर आपको 5 से 10 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है। सेकेंड थिंग है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया इज एम्ड टू एम्पावर women and ST and SC communities of the country so that they can also do good in the business, and to support them in their business government has introduced this scheme. ना इसमें आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट काफ़ी क्या है कि अगर आप कोई इंडिविजुअल हैं, अगर एप्लीकेंट इंडिविजुअल है तो फिर ठीक है, अगर एप्लीकेंट इंडिविजुअल नहीं है तो इसमें ज़रूरी ये है कि विमेन एप्लीकेंट या ST या SC एप्लीकेंट का जो स्टेक है इन द फर्म शुड बी 50% प्लस इन द फर्म, तो फिर ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज जो है CGTMSE जिसके अंदर आप 2 करोड़ तक का कोलेट्रल फ्री लोन ले सकते हैं। ध्यान देने की बात है कि ये सारे जो लोन्स हैं ये बेसिकली मैं अगर बात करूं कि आपकी स्टैंड अप इंडिया की लोन, तो ये ग्रीन फील्ड इंटरप्राइजेस के लिए है जिसमें भले ही आप मैन्युफैक्चरिंग करें या सर्विस बिजनेस में हो या ट्रेडिंग सेक्टर में हो। एंड गवर्नमेंट इसमें आपके लेंडर को काफ़ी हद तक बैकिंग देती है, आपकी बिहाफ में बैंक गवर्नमेंट इनको गारंटी देती है कि भाई आप इनको लोन दीजिए, गवर्नमेंट इज़ बिहाइंड यू, सो दैट वी विल गेट मोर एंड मोर यंग एंटरप्रेन्योर्स, न्यू एंटरप्रेन्योर्स who will contribute to the economy. Now coming to the tips for successful business loan management, because लोन मिलना एक बात है, उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप उस लोन को यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक रोबस्ट बजटिंग एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए ताकि आप प्रॉपरली अपने कैश फ्लो को मैनेज करें एंड अपने जो लोन जो हैं वो बैंक को टाइम से पे करें। दूसरी, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को आपको रेगुलरली मॉनिटर करते रहना चाहिए और कुछ भी अप्स एंड डाउन्स के हिसाब से आपको अपने प्लान अकॉर्डिंगली उसको ध्यान देना चाहिए। थर्ड चीज़ ये है कि आपको अपने लेंडर के साथ में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए ताकि आप उनके साथ में ट्रांसपेरेंटली अपनी चीज़ों को सामने रख सकें। इवन थोड़ी मोटी चैलेंजेस भी आती हैं तो आप उनके साथ डिस्कस करिए, प्रोबेबली दे विल बी इन ए पोजीशन टू हेल्प यू आउट। आपके मान लीजिए अगर किसी की सिचुएशन बहुत ही बुरी हो गई तो इन दैट केस इट इज़ बेस्ट टू एक्सप्लोर करें आप कि क्या एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको अपने लेंडर के साथ में एक बार चेक कर लेनी चाहिए इन केस ऑफ देयर इज सम जहाँ पे आपको कुछ फाइनेंशियल हार्डशिप्स आ चुकी हैं जो आपके प्लान के एग्जैक्टली साथ जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो ये लोन को डिफ़ॉल्ट करने से एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि आप अपने बैंक के साथ बैठ के, अपने लेंडर के साथ में बैठ के अपने लोन को रिस्ट्रक्चर कर दीजिए। एंड ध्यान दीजिए कि ये जो आपको जो लोन मिलता है ये अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए और अपने बिजनेस में ग्रोथ को लाने के लिए ही यूटिलाइज करें। इस लोन को आप बहुत ही वाइसली यूज़ करें। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी चांसेस यही रहेंगी कि आप अपने मिलने वाले लोन अमाउंट का आप प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे टू ग्रो योर बिजनेस, टू increase your revenue and also increase your profitability, and will close your loan on time and will increase your credit worthiness as well, so that आपका फ्यूचर में भी आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं they will be happy to support you financially whenever you need. So always use your loan and plan for loan diligently, and we wish you all the best for your successful entrepreneurship and business development and growth. Thank you so much. Just share our video amongst your friends and other groups, and also subscribe our channel and hit our bell icon so that you will keep on getting the notifications of our videos. Thank you so much.